एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं बच्चों कि हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में क्या क्या कवर कर लिया था। तो आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने वाटर साइकिल के बारे में डिस्कस किया, दैट वाटर इज इन कांस्टेंट मोशन, इट इज साइक्लिंग in the form of water cycle, this phenomena where there is जहाँ पे evaporation होता है, condensation होता है और precipitation होता है। So through these processes कि सबसे पहले water evaporate होता है, it rises in the air, उसके बाद condensation होता है, formation of clouds, and then precipitation, that is falling of water or coming down of water in the form of rain, right? तो ये water cycle का phenomena है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था uses of water. We saw that water is used for different purposes, right? That for the domestic use या फिर commercial use, industrial use, ये बहुत सारे uses होते हैं water के, right? हम लोगों ने उनको डिटेल में डिस्कस किया था। Then we talked about the problems of water availability, जिसमें हम लोगों ने देखा कि due to the rising demand of people or the rising population or the urbanization or rising demand for the food, वाटर अवेलेबिलिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इट हैज लेड टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो इसके लिए हमने देखा ऑल्सो वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा कि हाउ द वाटर इज कॉन्टामिनेटेड थ्रू आवर ओन एक्टिविटीज, थ्रू द कॉन्टामिनेशन थ्रू द वेस्ट दैट वी आर throwing in without any treatment, without any prior treatment directly into the water bodies, that of the oceans or the rivers, lakes। तो इस तरीके से वाटर पोल्यूशन हो रहा है, contamination of water bodies, right? Then we talked about the water pollution here. Then we talked about the water conservation, जिसमें हमने देखा that through different processes we can conserve our water, and we talked about afforestation, rainwater harvesting, the forest cover and the vegetation that plays an important role. Apart from that, we talked about the sprinklers that are used in farms or the different parks or different areas. You can see that sprinklers are used, right? उसके अलावा ट्रिकल इरिगेशन सिस्टम दैट इज यूज्ड इन द ड्राई रीजन। तो ये हम लोगों ने वाटर के बारे में कंप्लीट कर लिया था, राइट? तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे। दिस इज आवर लास्ट टॉपिक हियर, राइट, इन द होल कोर्स, दैट इज द लैंड, वाटर, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो आज हम लोग इसके बारे में कवर करते हैं। लेट अस सी नाउ। सो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर कॉल्ड बायोस्फेयर। तो बच्चों ये सारे जो टर्म्स हैं, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड द एटमॉस्फेयर, ये तो आपने फर्स्ट चैप्टर में जब हम लोग रिसोर्सेज की बात कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, राइट? और दीज आर कलेक्टिवली नोन एज द बायोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर दैट इज द लैंड, एटमॉस्फेयर द एयर एंड हाइड्रोस्फेयर इज द वाटर। तो we can say that the natural vegetation or wildlife, let it be the aquatic plants and animals or the plants or animals that are on the land surface. So basically these exist in the narrow zone here, in the lithosphere, in the hydrosphere, in the atmosphere, and we collectively call it as the biosphere, right? Now second term that we should know when we are talking about the when we are talking about the natural vegetation and wildlife is the ecosystem. तो बच्चों आप लोगों ने ecosystem के बारे में पढ़ा था। It is basically a process in which organisms they interact with each other and also with the environment. So in the biosphere, living beings are interrelated and interdependent on each other for survival. This life supporting system is known as ecosystem. तो बच्चों ये लास्ट जब हम लोग रिसोर्सेज की बात कर रहे थे तो उसमें भी आप लोगों ने पढ़ा था कि इकोसिस्टम में क्या होता है कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, राइट? और वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं, एंड देन दे आर इंटरैक्टिंग विद द होल सराउंडिंग और द एनवायरनमेंट दैट दे आर लिविंग इन। सो बेसिकली दिस फॉर्म्स द इकोसिस्टम, जहाँ पे लिविंग बींग्स दे आर इंटररिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट फॉर ऑन ईच अदर, बेसिकली फॉर द सर्वाइवल, फॉर देयर ओन सर्वाइवल, एंड दिस सपोर्टिंग सिस्टम इज कॉल्ड द इकोसिस्टम, राइट? नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेचुरल वेजिटेशन। तो हम लोगों ने जब पहले पढ़ा था, जब नेचुरल वेजिटेशन की बात करें तो आप वेजिटेशन से समझ जाते हो कि इसमें प्लांट या फिर फॉरेस्ट की बात होगी, राइट? तो एक बार हम लोग समझते हैं डिटेल में दैट व्हाट इज दिस नेचुरल वेजिटेशन, व्हाट डज इट कंप्राइज ऑफ, एंड लेट अस सी मोर अबाउट इट। ओके, सो नेचुरल वेजिटेशन refers to the garment of plants and trees that exist in the area before it is modified by man. Now let us understand it first. तो नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है बच्चों? इट इज द गारमेंट ऑफ प्लांट एंड ट्रीज, मतलब जितनी भी डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स or plant species or the trees that are there on the earth surface, on the lithosphere or in the water bodies, right?
तो ये सारे नेचुरल वेजिटेशन के अंदर आते हैं. नाउ इट इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन व्हेन बिफोर इट इज मॉडिफाइड बाय मैन, राइट. तो जब तक मैन अपनी एक्टिविटीज से इन जितने भी हमारे नेचुरल वेजिटेशन है, एज द नेम इम्प्लाइज इटसेल्फ, कि जो भी हमें नेचर ने प्रोवाइड किया है उसको हम लोग नेचुरल वेजिटेशन के अंदर लाते हैं, राइट. तो इसको मॉडिफिकेशन के थ्रू मैन अपने डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू मॉडिफाई करता है. नाउ लेट अस लुक एट द एक्टिविटीज थ्रू व्हिच मैन ट्राइज टू मॉडिफाई दिस natural vegetation. So man uses this natural vegetation for activities such as farming, mining, lumbering and industrial, economic and urban development, right? तो हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए दे यूज दिस नेचुरल वेजिटेशन. वी कैन कॉल इट फॉर द फार्मिंग पर्पसेस के लिए एग्रीकल्चर में, देन फॉर माइनिंग एक्टिविटीज, ओके, माइनिंग के लिए यूज होता है. देन द लंबरिंग, दैट इज द वुड आर कलेक्टेड, द वुड लॉक्स आर कलेक्टेड, राइट, फॉर टेकिंग इट टू द lumber industry. Then we can talk about the industrial processes, economic and the urban development for which this natural vegetation is used. Also you can see that we need natural vegetation because it helps us humans and animals. Now let us see how this natural vegetation it helps the human beings and the animals. So people use natural vegetation for food, building materials, etc. तो बच्चों जब भी आप trees या plants देखते हो तो you can think of numerous ways in which we are dependent on this natural vegetation. Also you should try to make a list of those things which you think that we are using the plants and trees for. तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल जैसे आपके लिए हैं, फॉर फूड, फॉर बिल्डिंग मटेरियल्स. तो इन सब चीजों के लिए जो हम प्लांट्स और ट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, राइट. और एनिमल्स कैसे होते हैं? सो एनिमल्स सच एज हर्बीवोर्स दे यूज इट फॉर फूड. तो जितने भी हर्बीवोर्स एनिमल्स है डेफिनेटली वो हमेशा ये प्लांट्स और ट्रीज पे डिपेंडेंट रहेंगे, राइट, फॉर देयर फूड. तो ये सारी चीजों के लिए हम लोग नेचुरल वेजिटेशन पे डिपेंडेंट रहते हैं. और बच्चों जब हम लोग नेचुरल वेजिटेशन की बात कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली जैसे हमने लैंड के बारे में देखा दैट दे आर डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स. अगेन देन वी टॉक्ड अबाउट द सॉइल, जिसमें हमने देखा दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड इन इंडिया, या फिर आप वर्ल्ड के लेवल पे भी देख लो तो बहुत सारे सॉइल्स होते हैं, दे आर बेस्ड ऑन द लैंड फॉर्म्स. अगेन when we talked about water bodies, then we saw that there are different sources of water. Likewise, when we are talking about the natural vegetation, we can say that there are different types of vegetation that are found, right? तो वर्ल्ड लेवल पे देख लो या इंडिया में हम लोग बात करते हैं, so vegetation of India can be divided into 5 types. Also, you must have learned about these types in class 7 also, but let us discuss here. The first one here is the tropical evergreen forest. Second one is the tropical deciduous forest. Third one is the thorny bushes. Fourth one is the mountain vegetation. And fifth one is the mangrove forest. तो बच्चों ये basically 5 classification है, 5 classification of the vegetation that is found in our country India. तो ये 5 नाम आप याद रखना. ट्रॉपिकल एवरग्रीन, इसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं. ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, थॉर्नी बुशेस, माउंटेन वेजिटेशन, मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये सारे डिफरेंट टाइप्स है, राइट. अब इंडिया के मैप में अगर आप देखो बच्चों तो आपको दिखेगा कि डिफरेंट रीजन में जिस तरीके का लैंड होता है, जैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, उस हिसाब से वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन होता है. अगर हम लोग माउंटेनियस रीजन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन वेजिटेशन होगा. अगर हम डेजर्ट रीजन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है, राइट. ऑल्सो सॉइल क्वालिटी इज नॉट दैट गुड. तो इस रीजन में थॉर्नी बुशेस होते हैं, बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर परफॉर्म नहीं होता है, बहुत ज्यादा वेजिटेशन नहीं हो पाता है, राइट. डेसिडियस फॉरेस्ट जो है बच्चों हमारा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, तो ये सबसे ज्यादा आप क्वांटिटी में देख सकते हो. अगर इंडिया की बात कर रहे हो तो सबसे ज्यादा आपको डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेगा. एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है, राइट. तो जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी बहुत है, क्लाइमेटिक कंडीशंस सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है. अगेन द मैंग्रोव फॉरेस्ट वेयर द वाटर अवेलेबिलिटी इज गुड, तो वहाँ पे आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट दिखेंगे. तो इस तरीके से डिफरेंट वेजिटेशन और उनका आप देख सकते हो इंडिया में डिफरेंट जगह पे वो डिफरेंट quantities may they are present in our country, right? Now let us see the uses of forest. तो बच्चों as I said you should make a list of forest of the uses that we use that we are dependent on the plants or trees or the forest basically, right? तो अब आप देखो कि आपने अगर लिस्ट बनाया तो आपके कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे मैच कर रहे हैं, राइट.
So the first and the most basic thing that we are dependent on plants for is the oxygen. So obviously you know that plants or the trees, they provide us oxygen. Now how do they do that? तो उनका जो process होता है, the process of making food, also वो जब भी वो sunlight, water and carbon dioxide is the most important component that they need, right? तो वो inhale करते हैं carbon dioxide and they exhale oxygen, right? और यही oxygen है that we inhale. तो दिस इज द लाइफ सेविंग गैस फॉर अस. अब हम लोग डिफरेंट यूजेस देखते हैं जो फॉरेस्ट के हैं, राइट? तो फर्स्ट वन हियर इज द मेडिसिन. सो इट प्रोवाइड्स अस द मेडिसिन. जो भी आप हर्बल प्लांट्स देखते होंगे, आप अपने घर में दादी को भी देखते होंगे कि पुराने टाइम पे वो लोग ये प्लांट्स और ट्रीज, जितने भी हर्बल प्लांट्स होते थे, उनके थ्रू ये मेडिसिन बनते थे, राइट? जो भी एलोपैथिक या फिर आयुर्वेदिक दवा होती है. देन अगेन द शेल्टर. ऑब्वियसली द फॉरेस्ट दे प्रोवाइड अस विद द शेल्टर. Fodder, that is the food. Then the fuel, जितने भी wood और ये सारी चीजें होती है वो हमारी trees के थ्रू ही आती है, right? Sports goods, जितने भी आप जो भी sports goods, जैसे आप बैट या फिर हॉकी स्टिक, इन सब चीजों से खेलते हो, तो do you imagine कि ये कहाँ से आता है? If you don't, now you should think कि जितने भी बैट और जितने भी हॉकी स्टिक या जो भी आप wood की मटेरियल यूज करते हो, that directly comes from the trees, right? Also the furnitures, जो भी टेबल, चेयर्स जो भी आपके घर में प्रेजेंट है, तो जो भी चीजें वुड की बनी है वो डायरेक्टली हमारी ट्रीज से आती है, जो फॉरेस्ट से आती है. देन द हनी, राइट? हनी जो हमारा हनी बी से आता है, राइट? और ये हनी बी आपको प्लांट्स के ऊपर ही मिलेंगे, जो भी ट्रीज है उनके ऊपर मिलेंगे. सो देयरफॉर इनडायरेक्टली वी कैन से वी आल्सो गेट हनी फ्रॉम द फॉरेस्ट. फ्रूट्स, राइट? गम एंड लैक. तो आप जो भी चीजें यू यूज फॉर द पेपर फॉर स्टिकिंग, तो ये जो गम और लैक जो आप यूज करते हो, ये भी हमारा कहाँ से आता है? ये हमारा ट्रीज से आता है. ओके. इट इज ऑल्सो नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ. ऑब्वियसली आप ट्रीज पे देखते होंगे बहुत सारे बर्ड्स जो अपने नेस्ट बनाते हैं, या फिर बहुत सारे शेड के नीचे, ट्रीज के शेड के नीचे बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं. सो वी कैन से दैट इट इज द नेचुरल हैबिटेट फॉर दीज वाइल्ड लाइफ, फॉर द वाइल्ड एनिमल्स और द बर्ड्स. Again for timber and then for rubber. So you can see that there are so many uses of forest. So जैसे हम लोग land के ऊपर depend करते हैं, soil के ऊपर depend करते हैं, likewise we are also depending on the forest, and these are some of the uses. I hope आप लोग अगर list बनाए हो तो some of these points must be matching with that of yours. तो हम लोग forest को farming activities के लिए भी use करते हैं, mining purposes के लिए भी use करते हैं. तो you can say that जैसे हम लोग land और ये सारी चीजें को यूज करके ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, लाइकवाइज फॉरेस्ट भी एक्सप्लॉइट होता है, राइट? तो हम लोग जो अगर फार्मिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो बहुत वास्ट रीजन जो फॉरेस्ट का है उसको रिमूव करना पड़ता है, तो दैट इज कॉल्ड द डिफॉरेस्टेशन. अपार्ट फ्रॉम दैट माइनिंग एक्टिविटीज अगर हो रही है या कोई इंडस्ट्री सेटअप करना है, तो बच्चों उसके लिए भी तो फॉरेस्ट को रिमूव करना होगा. तो जितने भी ट्री कवर, जो भी ट्रीज होंगे उनको रिमूव करना होगा. इनडायरेक्टली वी कैन से दैट इट इज ऑल्सो लीडिंग टू द डिफॉरेस्टेशन. तो इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें तो आज की क्लास में वी टॉक्ड अबाउट आवर न्यू टॉपिक दैट इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, राइट? दैट दे एग्जिस्ट इन द नैरो जोन बिटवीन द lithosphere, hydrosphere and atmosphere, which is collectively known as the biosphere. Again we talked about the ecosystem where the living organisms they interact with each other, and that with the environment. Apart from that we also talked about what is natural vegetation and how man has modified it for the natural vegetation for its own purposes, right? उसमें हम लोगों ने देखा mining, farming, industrial, economic purposes, right? इन सब चीजों के लिए हम लोगों ने अपने natural vegetation को use किया है. Then we talked about the forest, different types of natural vegetation that is present in India and the uses of forest. That's all for today. अब हम लोग next class में natural vegetation के बारे में और बात करेंगे. Then we will try to cover the wildlife. ओके और उसके बाद हम लोग देखेंगे हाउ टू कंजर्व आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड दैट ऑफ द वाइल्ड लाइफ. ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे.